Good morning, students. Class 12th. Today, our topic is coordination compound. As you know that we have completed till P block element, D block, D and F block elements. So today, I am going to start coordination compound. Coordination compound. Coordination means a compound containing coordinate bond. क्या होता है? ऐसा compound जिसके अंदर क्या होता है? Coordinate bond, which contain coordinate bond are called coordination compound. Typically, between a central metal atom, CMA, central metal atom and a number of other atoms or groups. Number of other atoms or groups. This type of bond is called coordinate bond and the compound is called coordination compound. And coordinate bond formed between Lewis base and Lewis acid. That is Lewis base or Lewis acid. Now, what is Lewis base? Lewis base क्या होते हैं? Molecule or ion which can donate a pair of electron. ये क्या करते हैं? Which can donate a pair of electron are called Lewis base. Where as Lewis acid, what are the Lewis acid? Lewis acid molecules or ion which can receive a pair of electron are called Lewis acid, and means you can say they are the electron pair donor. Electron pair donor, whereas Lewis acids are electron pair acceptor. Lewis acids are called electron pair donor because they donate a pair of electron, whereas Lewis acid are called electron pair acceptor. Let's say example. Suppose that, let's example. So let's see example of Lewis base or Lewis acid. Suppose that A is a species and it shared with another atom. A is a element or atom shared with another atom with one electron. एक इलेक्ट्रॉन इसका हो गया और एक इलेक्ट्रॉन इसका हो गया. And it has another lone pair. Means A has 5 electrons in its outermost shell. After sharing, this X species gets the duplet structure, inert gas structure, that is duplet. Whereas this A shared with another atom X and complete its octet. After that, it has a lone pair of electrons. It has a lone pair of electrons. And we have another species, that is B, and has
vacant orbital itself. So this lone pair of electron, ये इसको क्या करेगा, इसको ट्रांसफर कर देगा, ये lone pair of electron इसको ट्रांसफर कर देगा. So because it has a lone pair, so it's known as Lewis base, or you can say electron pair donor. Whereas B, that is Lewis acid, or electron pair acceptors. It is this is the example of Lewis acid because it accepts two more electrons from another species. So it is an electron pair donor, it is a Lewis base, and it is a electron pair acceptor. So it is a Lewis acid. And Lewis acid दूसरा कारण ये भी कह सकते हैं कि this act as a central metal atom because it has a vacant orbital. और जो आपकी ट्रांजिशन मेटल होती हैं, ट्रांजिशन मेटल और डी ब्लॉक एलिमेंट, उनके जो ऑर्बिटल होते हैं वो इनकम्प्लीट होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट का. क्लियर? नाउ लेट्स मूव. सो another example of Lewis base are, that is, which have a lone pair H2O. This is the another example of Lewis base, whereas carbon monoxide and OH minus and Cl minus, etc. These are the example of Lewis base. And carbon tetrachloride CCl4. Carbon tetrachloride is not a Lewis acid and neither a Lewis acid nor a Lewis base. Neither a Lewis base nor a Lewis acid because कारण है उसका, कारण है कि कार्बन का जो स्ट्रक्चर, जो स्मॉल स्ट्रक्चर है, और कार्बन के पास ये बन गया Cl और Cl. कार्बन हैज नो डी ऑर्बिटल, कार्बन के पास कोई भी डी ऑर्बिटल नहीं होता है, जबकि इसका दूसरा ही कंपाउंड है, दैट इज SiCl4. इसको बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड, whereas this one is silicon tetrachloride, and silicon tetrachloride is a Lewis acid. It acts as a Lewis acid because it has a vacant d orbital. सिलिकॉन के पास vacant d orbital है, जबकि कार्बन के पास vacant d orbital नहीं है. This is a really very most important question, that CCl4 is neither a Lewis base nor a Lewis acid, whereas silicon tetrachloride is a Lewis acid. कारण है because it has a vacant d orbital, क्योंकि इसके पास vacant d orbital होते हैं. Clear? Now another thing is example of Lewis acid. Let's see example of Lewis acid. That is Cu plus or Cu2 plus, Fe2 plus, जिसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आएगा वो क्या होगा, लुईस एसिड होगा. एंड Fe3 प्लस, क्योंकि Fe दो ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर हमको मिलता है 2 and as well as 3, and another one is AlF3, etc. These are the example of Lewis acid, AlF3. ठीक है जी. या आप इसको क्या कह सकते हैं, you can say, you can also
एज इलेक्ट्रोफाइल। ये किसके भांति काम करेगा? लुईस एसिड। और इसी को लुईस एसिड को हम क्या कहेंगे? सेंट्रल मेटल एटम। आप समझ लीजिए, इलेक्ट्रोफाइल हो गया आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, एंड लुईस एसिड फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, वेयर सेंट्रल मेटल एटम ये काम करेगा आपका कोऑर्डिनेशन। जब आप क्या पढ़ रहे होंगे? कंपाउंड। तीनों चीजें एक ही हैं, लेकिन जहां जैसा रोल वैसा ही हम इसको फिट करते हैं। सेंट्रल मेटल एटम लुईस एसिड और इलेक्ट्रोफाइल ये सेंट्रल मेटल एटम की भांति काम करते हैं। नाउ सो लेट्स सी द AlF3 की बात चल रही थी। AlF3 को भी हम क्या कहते हैं? लुईस एसिड, बिकॉज इट हैज ए वेकेंट इनकम्प्लीट ऑक्टेट। यहाँ पर क्या होता है? एल्यूमिनियम को यदि आप फ्लोरीन के साथ कंबाइन करते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पर फ्लोरीन का तो क्या हो जाएगा? ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन एल्यूमिनियम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है। ठीक है ना? ये क्या करता है? एक एक इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग करता है। ठीक है, यहाँ केवल क्या रहते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 3 इसके और 3 इसके। 2 8 3 एटॉमिक नंबर होता है एल्यूमिनियम का 13, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 8 3। इट मींस इट हैज ओनली 3 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल, सो इट शेयर्ड विद अनदर 3 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ फ्लोरीन। तो 3 के साथ शेयरिंग करेगा, इसका मतलब यहाँ पर इनकम्प्लीट क्या है? ऑक्टेट है, इसलिए ये लुईस एसिड की भांति काम करता है। तो जिनके पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है वो भी स्पीशीज लुईस एसिड की भांति काम करती हैं। सो अनदर एग्जांपल ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यहां से हम शुरू करते हैं आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड example of coordination compound, that is CONH3 NH3 का 4 टाइम्स, ठीक है, टेट्रा अमोनिया नहीं 6 टाइम्स, एंड Cl3 ये हो गया आपका। यहां पर क्या है? 3 एटम है क्लोरीन के, इसमें यहां नेगेटिव 3 हो गए, और इस पूरी एंटिटी के ऊपर पॉजिटिव 3 का चार्ज हो गया। अनदर वन इज Cu2 FeCN6। दूसरा एग्जाम्पल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ये हो गया। अब यहां आपने क्या देखना है? इसके अंदर आपने देखना है लुईस एसिड और लुईस बेस। तो जो सेंट्रल मेटल एटम है, यानी यहां ढूंढेंगे हम सेंट्रल मेटल एटम को, दैट इज कोबाल्ट। तो कोबाल्ट एक्ट्स एज ए लुईस एसिड, whereas NH3 act as a Lewis base. Clear? And in another species, central metal atom is iron. So Lewis acid is Fe2 plus, and whereas Lewis base is Cn. ठीक है जी? साइनाइड जो होगा वो लुईस बेस की भांति काम करेगा, Fe2 प्लस और Cn माइनस। साइनाइड जो होगा लुईस बेस की भांति काम करेगा, और आयरन Fe2 प्लस लुईस एसिड की भांति काम करेगा। नेक्स्ट अनदर वन एग्जांपल इज Ag, सिल्वर, NH3 का होल ट्वाइस, एंड Cl। यहां भी देखना चाहें क्लोराइड के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज होता है, तो एक यहां पॉजिटिव हो जाएगा, यानी ये क्या हो गया? पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है, ये नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि तो Cu के ऊपर 2 प्लस, तो यहां पूरी इस एंटिटी के ऊपर 2 माइनस होगा। ठीक है जी? आगे आता है आपका टाइप्स ऑफ कंपाउंड। क्लियर? यहां पर अगर आप देखना चाहें तो लुईस एसिड आपका हो गया सेंट्रल मेटल एटम Ag,
सिल्वर, whereas Lewis base हो गया आपका अमोनिया, that is NH3. It acts as a Lewis base. Now types of compound. There are the three common types of compound. The first one is types of compound. The first one is simple salt, your simple. Second one is double salt, and the third one is coordination compound or coordination salt. क्लियर? तो सबसे पहले सिंपल आता है, सबसे पहले आता है आपका सिंपल साल्ट, ठीक है ना। तो सिंपल साल्ट के लिए बेस्ट एग्जांपल है आपका NaCl. On dissociation, NaCl is the common example of simple salt that's known as rock salt, or it is present in our kitchen also. On dissociation, this rock salt gives Na plus Cl minus, and one cation, you can say one cation or one anion. It means those salts which gives one cation or one anion are called simple salts. यानी इनके अंदर क्या बनेगा, केवल एक cation बनेगा और दूसरा एक anion बनेगा, वैसे साल्ट को हम क्या कहेंगे, सिंपल साल्ट कहेंगे. एंड 5 to 9% solution in water is known as brine solution, is known as 5 से 9% जो क्या होता है, सॉल्यूशन होता है किसका, साल्ट का, NaCl का, सिंपल साल्ट का, उसको हम क्या कहते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं. अनदर वन इज द डबल साल्ट. ऐसा साल्ट जो दो साल्ट से मिलकर के बनता है उसको हम क्या कहते हैं, डबल साल्ट कहते हैं. दे आर आल्सो नोन एज मिक्स्ड सॉल्ट, इसको हम मिक्स्ड सॉल्ट भी कहते हैं. एग्जांपल हो जाएगा आपका इसका मोहर साल्ट, मोहर MOHRS, मोहर साल्ट, ठीक है. फॉर्मूला होता है FeSO4 into NH4 का होल ट्वाइस SO4. फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट दो मिक्स साल्ट मिलकर के क्या बनाते हैं, मोहर साल्ट बनाते हैं. एंड दिस इज लाइट ग्रीन इन कलर, एंड ऑन डिसॉल्विंग वाटर, यदि आप इसको आप क्या करें, वाटर के अंदर डिसॉल्व कर दें H2O, it gives 5 common ion which are present in itself. कौन कौन से आपको मिलेगा, Fe2 plus SO4 2 minus NH4 plus, और जो वाटर है कॉमनली ये भी छूट जाएगा, SO4 तो दो बार आ गया, H plus and OH minus के अंदर ये ब्रेक कर जाएगा. तो ऐसे सॉल्ट को जो क्या होते हैं, मिक्स होकर के बनते हैं, उनको हम डबल साल्ट कहते हैं. दिस वन इज दिस डबल साल्ट विल डिसोशिएट इन वाटर कंप्लीटली, ठीक है जी. एंड दिस फेरस अमोनियम सल्फेट, मोहर साल्ट, इसको किस नाम से जानते हैं, मोहर साल्ट के नाम से. और कैसा होता है, लाइट ग्रीन इन कलर, ठीक है. किस किससे मिलकर के बनता है, बाइफिलेटेड कर दीजिए आप यहाँ से. तो इट इज द मिक्सचर ऑफ फेरस सल्फेट एंड अमोनियम सल्फेट, ठीक है. एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ Fe++, it is light green in color, it is light green in color. Another example is potash alum. Another example is potash alum, also known as फिटकरी. इसको हम फिटकरी के नाम से भी जानते हैं. And the chemical composition is that K2
SO4 into Al2 SO4 का whole factor into 24 H2O. It means it is the combination of potassium sulfate and aluminum sulfate, and there are 24 water molecule in it. So it is a hydrated salt. Those salts which contain water molecule are called hydrated salts. So there are 24 water molecules in the potash ion. Another one is carnallite. Another example is carnallite, and the composition is that carnallite is KCl, potassium chloride, KCl into MgCl2 into 2H2. There are 2 water molecules of carnallite in it. Clear? So next part, next one is coordination salt. Third one is coordination. Coordination. Third one is coordination salt. Coordination salt. And the best example of this is potassium ferricyanide. C(N)6. Potassium ferrocyanide, K4FeCl6. And on dissolving water, देखो यहाँ क्या है, पोटेशियम के 4 हैं, मीन्स इसके ऊपर हो गया 4 प्लस, तो यहाँ चार्ज हो जाएगा 4 माइनस. अब इसको वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं. ऑन डिसॉल्विंग वाटर इट गिव्स 4K प्लस Fe और CN6 का 4 माइनस, FeCN6 4 माइनस. ठीक है जी. ये यहाँ पर क्या है, दिस एंटिटी एक्ट एज ए लुईस एसिड, क्योंकि इसके पास तो क्या है 4K प्लस चार्ज है. Actually as you know that iron, the atomic number of iron is 26 and it has an electronic configuration. यहाँ क्या आपका आर्गन के बाद 4s32 और 3d कितना रहेगा, यानी आर्गन का हो गया आपका 18 36 18 तो 20 और ये हो गया आपका 3d6. तो अगर आप देखें D के अंदर होते हैं आपके, there are 5 orbitals, 1 2 3 4 5 and there is 6. So there are 4 vacant D orbital, 4 vacant D orbital. So it acts as a Lewis acid, क्योंकि इसके पास क्या है, vacant D orbital है. And the square bracket entity, square bracket is called coordination entity or sphere. इसको क्या कहेंगे, coordination entity और sphere. इसको हम कहेंगे coordination entity और sphere. And here cyanide acts as a Lewis base or legend. This is legend. ये वर्ड याद रखेंगे, क्या होता है इसको हम डिस्कस करेंगे अभी. एंड साइनाइड आयन डोनेट्स 2 इलेक्ट्रॉन. साइनाइड कितने 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है. एंड द नंबर इनसाइड कोऑर्डिनेशन स्फीयर इंडिकेट्स कोऑर्डिनेशन नंबर. और कोऑर्डिनेशन नंबर को Cn कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि जितने लोन पेयर, द नंबर ऑफ लोन पेयर डोनेटेड, द नंबर ऑफ लोन पेयर डोनेटेड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर. बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको बिल्कुल आप सेट करके रखेंगे अपने माइंड के अंदर. ठीक है जी. लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जरूरी नहीं कि जो इसके साथ लगे हुए हैं वही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, यानी लीजेंड जो होता है उसको ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की गलती मानने की गलती नहीं करनी है.
कोऑर्डिनेशन नंबर कहेंगे। जैसे इसके अंदर जो कोऑर्डिनेशन नंबर है इसका A4, Fe और CN6, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर है आपका 6। ठीक है जी, ये 6 जो है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर है। और दूसरा हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं द ऑलवेज इंडिकेट, दिस ऑलवेज इंडिकेट्स द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड के द्वारा भी हम इसको क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड दिस इन दिस केस आयरन एक्ट्स एज ए सेंट्रल मेटल एटम। आयरन किसकी भांति काम करेगा, सेंट्रल मेटल एटम की भांति काम करेगा। एंड द एंटाइटी इनसाइड द ब्रैकेट आर मेड ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये जो एंटाइटी है ब्रैकेट के अंदर, ये किससे मिलकर के बनी हुई है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से मिलकर के बनी हुई है। एंड ऑन डिसॉल्विंग वाटर इट विल बी चेंज और इट विल बी डिसोशिएट इनटू 4K plus or FeCN6 minus, but this entity do not separate, do not dissociate. So unlike, so the square bracket entity will only break. इसको हमें अगर तोड़ना है तो ये कैसे टूट सकती है, if the solution is highly acidic और highly alkaline और गर्म करने पर। अगर हम इसको हीट कर दें तो ही ये अलग अलग हो सकती है, अदरवाइज पानी में डिसॉल्व करने पर ये एंटाइटी अलग नहीं होगी। यानी इसके अंदर कैटायन और एनायन तो अलग हो सकते हैं, लेकिन जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड जहां है उस एंटाइटी को हमें अगर चेंज करना है, बदलना है, तो हमें क्या करना पड़ा, उसकी कंडीशंस चेंज करनी होंगी। या तो वो हाईली एसिडिक होगा, हाईली एल्कलाइन होगा, और गर्म करने पर भी ऐसा हो सकता है। ओके, सो अनलाइक डबल साल्ट्स द कॉम्प्लेक्स साल्ट्स डू नॉट डिसोशिएट कंप्लीटली इन वाटर। ठीक है जी। सो स्टूडेंट्स, ये रहा आपका क्लासिफिकेशन ऑफ साल्ट। नेक्स्ट सेशन के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे इससे आगे क्लासिफिकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ओके, सो तब तक आप इसको देखें, नोट करें और आपके डाउट भेजते रहें। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।